दुनिया जिस अजाब में मुब्तला है वो है इंडिविजुअलिज्म। ला इलाहा इल्लल्लाह। আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক। বহুত দিন পরে আরেকটা নতুন ভিডিওতে। টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছেন আজকে কিসের ব্লগ। তো আজমানের অবস্থা খুব একটা ভালো না, কিন্তু প্রোগ্রামেরও বেশি দেরি নেই, যার কারণে ভিজে ভিজেই রিক্সাতে করে বাইর হয়ে গেলাম আমরা আমাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। এক দৌড়ে চলে আসলাম আমাদের 10 নম্বর মেট্রো স্টেশন, কারণ আজকে আমাদের প্রোগ্রাম হচ্ছে বিজয় সারণীতে, বাংলাদেশ চীন মৈত্র সম্মেলন কেন্দ্রে। তো তারপরে আমরা সুন্দর মতো তাড়াতাড়ি ট্রেনের টিকিট কেটে তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম। আমরা ভাবছিলাম যে আমরা লেট করে ফেলবো, কারণ প্রোগ্রামের টাইম ছিল 3টায় এবং আমরা ঘর থেকে বাইরেছি 3টার পরে। তো আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, যার কারণে বাইরে তো একটু লেট হয়েছে। তো সমস্যা হয় নাই বেশি একটা। আমরা যাওয়ার পরে দেখছি যে প্রোগ্রাম তখনও শুরু হয় নাই, যদিও বা আমরা নামার কথা ছিল বিজয় সারণীতে, কিন্তু আমরা নামে গেছিলাম আগারগাঁওতে। আমরা বলতে আমি আর আমার ছোটো ভাই ছিলাম। তো তারপরে আমরা দুজন মিলে একটু বৃষ্টি উপভোগ করতে করতে রাস্তা দিয়ে হাঁটলাম। আর এই রাস্তাটা দেখতে অনেক সুন্দরই লাগে, বৃষ্টি হোক অথবা নর্মাল দিন হোক রাস্তাটা সেই লাগে। তো আমরা চলে আসছি আমাদের প্রায় গন্তব্যের কাছাকাছি। যেহেতু রাস্তায় বৃষ্টি এবং কিছুটা জ্যাম ছিল, যার কারণে তখন পর্যন্ত মানুষ ওইভাবে আসে নাই যেরকম এক্সপেক্ট করা হয়েছিল। তাও বেশ কিছু গাড়ি ছিল, বাট আরও বেশি এক্সপেক্ট করা ছিল, কারণ হচ্ছে প্রোগ্রাম ছিল 3টা বাজে, অলরেডি 4টা বেজে গেছে, আর ওই তুলনায় মানুষই আসে নাই। তো আমরা ভাবতেছিলাম যে কি হচ্ছে, ভাবতেই আমরা ভিতর দিকে চলে গেলাম। আর আমাদের টিকিটটা কাটা ছিল অনলাইনে, যার কারণে আমাদেরকে অফলাইন টিকিট নেওয়ার জন্য বুথে যাওয়া লাগবে। তো আমার ছোট ভাইরে দিয়ে টিকিট কাটেছিলাম, যার কারণে ওরই দিয়ে টিকিট তুলাইলাম। এখানে 2 ধরনের টিকিট ছিল, একটা 500 টাকা, একটা 1000 টাকা। আমরা 1000 টাকার টিকিট কাটিয়েছিলাম। তারপর আমরা অপেক্ষা করতেছিলাম ভিতরে যাব কি বাইরে দাঁড়ায় থাকবো। তো বাইরে দাঁড়ায় থাকতে থাকতে বেশ কয়েকজনের সাথে দেখা হলো। প্রথমেই খালেদ সাইফুল্লাহ হুজুরের সাথে দেখা হয়েছিল, এরকম করে একজন পর একজন অনেক মানুষের সাথেই দেখা হয়েছে, সবার ভিডিও করা নাই। তারপরে আমরা ভাবলাম যে ভিতরে যাই একটু দেখি পরিবেশটা কেমন। মুফতি আব্দুর রহিম আল মাদানী হাফিজাহুল্লাহ, এর আগেও বলেছি, অনেকে উপস্থিত হয়েছেন, বিশেষ করে আরো উপস্থিত হয়েছেন মুফতি রিজাউল করিম আবরার হাফিজাহুল্লাহ। মোটামুটি ছোটোখাটো কিছু নাশিদ এবং প্রদর্শনী দেখার পরে আমরা আবার বাইরে হয়ে গেছি আসর নামাজের বিরতিতে। ততক্ষণে মোটামুটি মানুষ আসা শুরু হয়ে গেছে। এটা যেহেতু একটা মাদ্রাসার প্রোগ্রাম ছিল, যার কারণে মাদ্রাসার স্টুডেন্টরাও ছিল এবং স্টুডেন্টদের অভিভাবকরাও ছিল এবং বিশেষ অতিথিরাও ছিল। আর যারা টিকিট কেটে আসছে তারা তো ছিলই। সব মিলে মানুষ মোটামুটি ভালোই হয়েছে, খারাপ না। তো তারপরে আমরা আসরের নামাজটা পড়ে সুন্দর মতো বাইর হয়ে গেলাম। আর বাইর হয়ে দেখি যে বেশ কিছু পাকিস্তানি আসছে। তো আমি আর আমার ছোটো ভাইয়ের সাথে ওই সামনের পাকিস্তানি ওই লোকটার কাবলি ম্যাচ করতেছিলাম, যে ওরা যে কতটা সুন্দর। ভাইরে ভাই, ওকে কাবলি পড়তে দেখলেই সুন্দর লাগে, আর আমগো বাঙালি লাগে। তো তারপরে বাইরের পরিবেশ দেখতেছিলাম, মোটামুটি গাড়ি ঘোড়া আসছে, আরও কিছু নতুন বাইক আসছে, কয়েকটা মানুষ আরও আসতেছে। বৃষ্টি থেমে গেছে, জ্যামও কিছুটা হালকা হয়েছে, পরিবেশটা মারাত্মক লাগতেছে। তারেক মাসুদ হাফিজাহুল্লাহ সমাজের এই নোংরামির বিরুদ্ধে লড়াই করতেছে। আমরা তো হাসি তামাশার মধ্যে এই জিনিসটা দেখতেছি না, তিনি মডারেট মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেছেন। এই সম্মেলনে আসলে অনেক ওলামায়ে কেরাম ছিলেন এবং অনেক ভিডিও আমার মোবাইলেও আছে, বাট আমি সম্পূর্ণ ভিডিওটা দিতে পারতেছি না, যার কারণ হচ্ছে গিয়ে এমনিতেই ওখানে ভিডিও করার রেস্ট্রিকশন ছিল। তারপরেও এত বড় ভ্লগ বানাইলে অনেকে বোরিং হয়ে যাবে, যার কারণে আমি কেটে জাস্ট মূল অংশটুকু দিচ্ছি। তো এখানে প্রথমে হাসান জামিল হুজুর আসরের পরে বয়ান শুরু করছিলেন অ্যান্ড উনি কিছুক্ষণ কথা বলছেন। দেন তারপরে মাইক চলে গেছিলো হলো রেজাউল করিম আবরার হুজুরের কাছে, এবং উনিও মোটামুটি 10 মিনিটের কাছাকাছি একটা বক্তব্য দিয়েছেন, যার পুরোটা আমি এখানে দেখাতে পারছি। কোনো ধরনের ভূমিকা ছাড়া আমি আমার প্রিয় তারুণ্যকে একটা মেসেজ দেব, একটা বার্তা দেব। সেটা হলো আমাদের দেশে প্রচলিত কাঠামোগত ইসলাম বিদ্বেষ নিয়ে আমার তারুণ্যকে প্রথম যে কথাটা আমি বলবো, আমাদের বাংলাদেশে আমরা 71-এর ইতিহাস জানি, কিন্তু আমাদের প্রজন্ম 47-এর ইতিহাস জানে না। 1972 সালে আমাদের বাংলাদেশের যে সংবিধান লেখা হয়েছে, সেই সংবিধান ভারতে বসে লেখা হয়েছে, এবং সেই সংবিধানে কাঠামোগত ইসলাম বিদ্বেষ তৈরির জন্য, কাঠামোগত ইসলামকে পরাজিত করার জন্য, কাঠামোগতভাবে ইসলামকে বাংলাদেশ থেকে বিদায় করার জন্য আমাদের বাংলাদেশের ধর্ম নিরপেক্ষতা আমাদের সংবিধানে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 2024-এর 7 আগস্টের গণবিপ্লবের পর আমাদের তারুণ্যের প্রথম মেসেজ, ধর্ম
ফলাফাইন্ডি মাদ্রাসার হলে কি ভয়েস এবং এক্সপ্রেশনগুলা মাশাল্লাহ 100 তো 150। যাই হোক, বিকালের প্রোগ্রাম মোটামুটি শেষ। তারপরে আমাদেরকে নাস্তা দিয়েছিল, আর বাঙালি নাস্তার লাইনে দ্বারা কী কী করে আপনারা বুঝতে পারবেন। তো তারপরে আমরা নাস্তার বাটি নিয়ে আমরা পিছনে চলে আসছিলাম। যা দেয় তাই দিছে। তো তারপরে আমরা দেখতেছিলাম যে আমাদের ধর্মোপদেষ্টা উনি আসতেছিলেন, উনি মাগরিবের পরে কথা বলবেন, যার কারণে উনি মাগরিবের ঠিক আগে আসছেন। আমাদের নাস্তাটা খেয়ে আমরা মাগরিবের নামাজ পড়ছি, উনিও এখানেই মাগরিবের নামাজ পড়ছেন। দেন তারপরে উনি ওনার বক্তব্য দিয়েছেন, যেটা আমরা সামনে দেখতে পারবো। তো আমাদের নাস্তা খেয়ে আসতে আসতে মোটামুটি প্রথমে 2 জামাত শেষ হয়েছে। আমরা 3 নম্বর জামাতে গিয়ে শরীক হয়েছিলাম। যেহেতু মসজিদটা খুব বেশি একটা বড় না, যার কারণে একটার পর একটা জামাত চলতেই আসছিল। তো আমরা নামাজটা শেষ করে তারপরে বাইরে হয়ে আসছি। একজনের পর একজন যেহেতু প্রোগ্রাম করে যাচ্ছিল, যার কারণে আমি ইন্ট্রো দেওয়ার খুব একটা টাইম পাচ্ছিলাম না। তো কোরআন তেলাওয়াত শোনার পরেই আমরা আমাদের শেখ এনাম ভাইয়ের কণ্ঠে একটু নাদ শুনেছি। আমাদের জানা মতে, আমার জানা মতে বিশেষ করে এত বড় মাপের ইসলামী আয়োজন ভৌত চিন্মতি সম্মেলন কেন্দ্রের মতো জায়গায় এর আগে এরকম দৃশ্য বিরল। এই মহতি আয়োজনে সবার কণ্ঠে একবার হলো শুনবো ইনশাআল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ खुदी है तेरे पसंद। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ভাইরে ভাই, মোবাইলে যতই শুনি না কেন, সামনাসামনি শোনার ফিলটা জীবনেও কখনো আসবে না। তো যাই হোক, এটা এনাম ভাইয়ের সাথে আমার ফার্স্ট দেখা ছিল। The true blessing of our International Islamic Dawah Conference. We are truly happy to have you, sir. Now, we kindly request you to come to the stage and share a few words with us. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. আন্তর্জাতিক ইসলামী দাওয়া কনফারেন্সের মহতরম সভাপতি সুলতানুল ওয়াইজিন হযরত আল্লামা মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ আইয়ুবী হাফিজাহুল্লাহ তাআলা আযজা ওয়া জাল্লা ওয়া রাআ, উলামায়ে কেরাম, সুধী মণ্ডলী। জি, তারপরে উনি মোটামুটি আধা ঘন্টার উপরে বক্তব্য দিয়েছেন, যেটা সম্পূর্ণটা অবশ্যই এখানে দেখানো যাবে না। তো এটার সম্পূর্ণ ভিডিও আপনারা অনলাইনে পেয়ে যাবেন। Elevated the spiritual atmosphere of this event, known for his powerful speeches, deep knowledge and heartfelt connection with the Ummah. Mufti Tariq Masood has inspired millions across the world. We are truly blessed to have him among us today. Let us welcome Mufti Tariq Masood with a big heart, love and dedication. Thank you. সম্মানিত মেহমানবৃন্দকে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ইয়েস, ফাইনালি আমাদের ধর্মোপদেষ্টার বয়ানের পরপরই আমাদের মূল আকর্ষণ যিনি ছিলেন, আমাদের পাকিস্তানি চার শাদিওয়ালা কে উস্তাদ হামারে মোহতারাম আ গয়া থা। তো ওনাকে ওয়েলকাম করা হয়েছে। দেন তারপরে আরও কিছু বয়ান ছিল, যেগুলো সবগুলো আমার কাছে নাই। অফকোর্স আমার মোবাইলে চার্জটা শেষ হয়ে গেছিলো, যার কারণে খুব বেশি আর বয়ান রেকর্ড করতে পারি নাই। তো একদম লাস্টে তারেক মাসুদ হুজুরের বয়ান ছিল। তো দেখতে থাকেন, সামনে কি কি হয় সব দেখাচ্ছি। এই মুহূর্তে
আমার আলোচনাটা অনেকের কর্মপক্ষের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আলহামদুলিল্লাহ, গুরুত্বপূর্ণ সব আলোচনা হয়ে গেছে। ছোট্ট একটি বিষয় আমাদেরকে মাঝে মাঝে হীনম্মন্যতার শিকার করে দেয় কিছু মানুষের অবান্তর প্রশ্ন। মাঝখানে আরও 4 জন হুজুরের বয়ান গেছে, বাট আমার মোবাইলে স্পেসও নাই, আমার মোবাইলে চার্জও নাই। দ্যাটস ওয়াই আমি ওগুলো ভিডিও একদমই করতে পারি নাই। একদম লাস্টে চলে আসছি আমরা। আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লামা তারেক মাসুদ হাফিজাহুল্লাহ ইতিমধ্যে মঞ্চে চলে আসছেন। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं गुलाबों पे वो असरार के रहते हैं वो तौसीफ सनाए चाहे अबरार में हर लहज़ा हर बार। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं गुलाबों पे वो असरार के रहते हैं वो तौसीफ सनाए चाहे अबरार में हर लहज़ा हर बार। वरना वो हाशमियों मुतनबियों अरबियों करशियों मदनी और कहा हमसे गुनाहगार। अल्लामा तारिक मसूद हाफिजाहुल्लाह के अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मरकज़ुल फुरक़ान का बहुत शुक्रिया और उनके चेयरमैन जनाब खालिद सैफुल्लाह अयूबी और मुशर्रफ हुसैन महमूद, और जो मुझे बांग्लादेश में इनवाइट करने वाले मौलाना तलहा रहमान हाशमी, इन तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कुछ लोगों का शुक्रिया जो मैं अकेले में जब आप खुशबू लगा के आएंगे तो इंशाअल्लाह बताऊंगा, जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। इन सब का शुक्रिया कि इन्होंने मुझे बांग्लादेश में मौजूद अपने भाइयों से अपने बुज़ुर्गों की ज़ियारत का मौका दिया, अपने भाइयों के सामने बातचीत का मुझे मौका फ़राहम किया, मुलाकात का मौका फ़राहम किया। यहाँ इस सरज़मीन पर हमारे असातिज़ा भी हैं, हमारे शागिर्द भी हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये तो एक ही थे। आज भी जो सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाले लोग हैं, जो माइक है उसका ईको ख़त्म कर दें, ईको, ताकि आवाज़ में गूंज पैदा ना हो। तो कलमे का रिश्ता वो रिश्ता है जिसने हमें एक जान बनाया हुआ है, चाहे हमारे मुल्कों की लकीरें अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहला रिश्ता हमारा वो रिश्ता है जो दीन और मजहब का रिश्ता है। इज़गार आप मुझे बताएं मैंने क्या करना है? सिर्फ 4 शादियों के बयान करना है। मेरे आज पूरी दुनिया जिस अजाब में मुब्तला है वो है इंडिविजुअलिज्म, इनफिरादियत। ना खुदा से आपका रिलेशन हो और ना मखलूक का आपस में रिलेशन। आप मगरिबी दुनिया में जाएं, वहां आपको अच्छे डॉक्टर नजर आएंगे, अच्छे शौहर नजर, अच्छी बीवी नजर, अच्छा भाई नजर नहीं आएगी, अच्छी बहन नजर नहीं आएगी। ऐसी इंसानियत का करना क्या है आपने, जहां सारे के सारे रिश्ते मार्केट से शॉर्ट। ये बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे एक बीवी अपने शौहर से कहती है कि तुम मुझ पे खर्च क्यों नहीं करते, गैस का बिल तुम दिया करो, बिजली का बिल तुम दिया करो, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। खाने का इंतजाम तुम किया करो क्योंकि तुम मेरे, बोलो ना, हस्बैंड हो। मेरे बच्चों का खर्चा तुम उठाओ क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो।
मेरे बाप का तुम एहतराम किया करो क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरी माँ को रिस्पेक्ट दिया करो क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। आप कहें मैं इनमें से कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं सिर्फ इंसानियत के रिश्ते पे बिलीव करता हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। बेगम कहेगी मुझे ऐसे इंसान की जरूरत नहीं है। तो इसे हम कहते हैं कि लेबल अच्छा लगा के इंसान जो चीज बेचता है उसको कहते हैं मंजन बेचना। उसे क्या कहते हैं? मंजन बेचना। दुनिया इसी पे चल रही है, दुनिया इसी पे चल रही है। एक आदमी अपना गधा बेचने के लिए गया, बिक नहीं रहा था उससे। दलाल कहते हैं ना उसको, कमीशन एजेंट होता है जो चीजें बेचता है जी, हाँ दलाल। तो इसने एक बंदे को पैसे दिए कि ये मेरा मरियल सा सड़ियल सा गधा है, ये तू बेच दे मार्केट में जाके। अब उसने मार्केट में जाके उस गधे का मंजन बेचना शुरू किया, फजाइल सुनाने। ये वो गधा है जिसपे अल्लामा इकबाल इसके बाप दादा पे सवारी किया करते थे। ये वो गधा है जिसपे कायदे आज़म बैठे थे। ये वो गधा है जिसपे फला बांग्लादेश के कोई बुजुर्ग बैठे थे। ये वो गधा है जिसपे जलालुद्दीन के बाप दादा ने इसके पेशानी पे हाथ रखा है, वगैरह वगैरह। कितने फजाइल बयान किए कि जो गधे का मालिक था उसने कहा भाई इतना अच्छा गधा मैं नहीं बेचता, ये क्या जरूरत है इतना अच्छा गधा। तो याद रखो, जिन कौमों के पास इस्लाम नहीं है ना, इस्लाम नहीं है, मजहब नहीं है, दीन नहीं है, अल्लाह रसूल पे ईमान नहीं है, कुरान नहीं है, अब उन्हें ये तो शो करना है कि हम दुनिया में अच्छे इंसान हैं। मजहब के बगैर भी इंसान अच्छा इंसान बन सकता है। शो करना है कि नहीं करना? ताकि हम उनको फॉलो करें, हम उनको अपना बाप माने, हम उनको मोटिवेशनल स्पीकर माने, हम उनसे मोटिवेशन लें, हम उनसे हिदायत लें। ये करना है कि नहीं करना उन्होंने? तो अब उनके पास इंसानियत खत्म। मार्केट से अब्बा शॉर्ट, भाई शॉर्ट, बहन शॉर्ट, फादर इन लॉ शॉर्ट। जो सच्ची मुच्ची का फादर है वो शॉर्ट हो गया, तो फादर इन लॉ में तो 2 टके की हैसियत नहीं उसकी। सच्ची मुच्ची की बेटी मार्केट से शॉर्ट हो गई तो डॉटर इन लॉ की क्या हैसियत रही भाई? ये मैं क्यों आज बयान कर रहा हूं? आज मैंने एक शॉर्ट क्लिप देखा जिसमें एक शख्स लोगों को ये गुमराह कर रहा है कि मैं इंडिविजुअल लाइफ गुजारता हूं, मैं रिलेशन में बिलीव नहीं रखता। अब ये नारा लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है। मैं रिलेशन में बिलीव नहीं रखता, मैं अकेला जीता हूं। ना 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 ना, अकेला दुनिया में कोई नहीं जीता। जिन कौमों ने इंडिविजुअलिज्म को प्रोमोट किया उनकी जिंदगी में रिश्ते खत्म हो गए, लेकिन वो इनफिरादी जिंदगी नहीं गुजार सकते थे। इंसानों से रिश्ते खत्म होकर उनको रिप्लेस किया गया कुत्तों के जरिए। चाहे रिलेशन बहुत तरीकों से बनते हैं, कभी ब्लड रिलेशन होता है, कभी आपके साथ कोई रहने वाला होता है उससे आपका रिलेशन होता है, कभी किसी ने आप पर एहसानात किए होते हैं उसका रिलेशन होता है। तो ये बहुत सारे रिलेशन मिलके इंसान की एक फैमिली बनाते हैं। इन रिलेशन को निभाने वाला अच्छा कहलाता है और इन रिलेशंस को तोड़ने वाला इंसानों में बुरा कहलाता है। इंसान को डिप्रेशन से बचाने के लिए, निकालने के लिए, जिस्मानी रूहानी तस्कीन के लिए जो मोहब्बतें चाहिए, इंसान इंडिविजुअल अल्लाह ने पैदा नहीं किया। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं वल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा, वो अल्लाह है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया और 2 खानदान ददियाल ननियाल वाले दिए और एक खानदान जब बालिग होने के बाद ससुराल वाला खानदान दिया। इन 3 खानदानों में इंसान रहता है। इन 3 खानदानों से उसको अगर आप बाहर निकाल देंगे तो ये फितरत से बगावत कहलाएगी। और दुनिया में कोई जानवर नेचर से बगावत करके खुश नहीं रह सकता, तो इंसान नेचर से बगावत करके कैसे खुश और कामयाब जिंदगी गुजार सकता है? को शादियों के अलावा क्या आता है? घरों को तबाह कर दिया,
मैं उनसे कहता हूँ भाई आपको मेरे बयान अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, मैं तो नहीं कहता मैं आलिम हूँ, लेकिन थोड़ी सी रिस्पेक्ट इस बहाने दे दो कि मौलवी साहब हैं। तो ये नहीं कि भाई हमें जो अच्छा लग रहा है और तो हम टीचर बाज़ दफा अच्छे नहीं लग रहे होते, लेकिन अल्लाह ने टीचर के एहतराम का हमें हुक्म दिया है। अच्छा ये बात दफ्तरों में समझ में आ जाती है, बॉस अच्छा नहीं भी लग रहा होता तो कैसी रिस्पेक्ट दे रहे होते। सर आप बताइए सर प्लीज। एयर होस्टिस को बहुत दफा पैसेंजर अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन फिर भी एयर होस्टिस की पेशानी पे लकीरें नहीं आती। होमोसेक्सुअलिटी एक जमाने तक अमेरिका में, कनाडा में इलीगल थी, आज उसको कनाडा वालों ने क्या कर दिया, लीगल कर दिया, और यूरोप वालों ने क्या कर दिया, लीगल कर दिया। यूरोप में एक जमाने तक जिना, बदकारी, विदाउट मैरिज किसी औरत से फिजिकल रिलेशन इलीगल था, आज उसको क्या कर दिया उन्होंने, बोलते क्यों नहीं, लीगल। एक जमाने तक शराब इलीगल थी, आज दुनिया के माहिर बैठे उस शराब को एक खास क्वांटिटी में लीगल कर दिया। और अगर आपकी छुट्टी का दिन है तो फिर बगैर क्वांटिटी के भी लीगल है, जितनी मर्जी पी लो आपको इजाजत है। ब्राजील में चर्च लीगल, समझते हो कि नहीं समझते? बहुत सारे यूरोप के मुल्कों में ताजा लीगल, पहले क्या था, बोलते क्यों नहीं, इलीगल। पहले जमाने में अब्बा को ओल्ड हाउस में जमा कराना इलीगल, यूरोपियन दुनिया में भी, आज क्या है, लीगल है। औरत का औरत से रिलेशन लीगल, पहले क्या था, इलीगल। पहले उनकी सोसाइटी में आपकी विरासत आपकी औलाद ही को मिलेगी, औलाद के अलावा कहीं और जाना इलीगल। आज उसकी सोसाइटी में क्या है, लीगल, आपकी मर्जी, जिसको कुत्ते तक को भी आप देके जा सकते हो। तो बहुत सारी उनकी सोसाइटी में कल इलीगल थी, आज लीगल हो गई, कल लीगल थी, आज इलीगल हो गई। हमारे पास इस्लाम ने एहसान किया, आसमान से अहकाम नाजिल कर दिए और बताया कि मैं खुद बताऊंगा क्या लीगल है क्या इलीगल है, और उस बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करना। इसलिए हम पर एहसान, हमारी नस्लों पे एहसान, हमारे लिए लीगल इलीगल की बहस ही क़यामत तक के लिए अल्लाह ने खत्म कर दी और कहा जो मुझसे रिलेशन पे बिलीव रखते हैं तो मेरे हलाल को हलाल मानना पड़ेगा और मेरे हराम को हराम मानना पड़ेगा। अल्लाह ने जिना को 1400 साल पहले हमेशा से हराम था, 1400 साल पहले कुरान में अनाउंस कर दिया। अब क़यामत तक किसी औरत से विदाउट मैरिज फिजिकल रिलेशन हमारे लिए लीगल नहीं हो सकता, चाहे गवर्नमेंट लीगल कर भी दे, हमारी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। हमारे लिए क्या रहेगा, वो इलीगल का इलीगल ही रहेगा। वो समझते हो कि नहीं समझते? अगर गवर्नमेंट शराब को लीगल कर दे मेरे और आपके लिए, फिर भी वो क्या रहेगी, बोलते क्यों नहीं, इलीगल रहेगी। गवर्नमेंट अगर खिंजीर को लीगल कर दे मेरे और आपके लिए, वो हमेशा क्या रहेगा, इलीगल रहेगा। अगर यूनाइटेड नेशन जुए और सट्टे को लीगल कर दे मेरे और आपके लिए, वो हमेशा इलीगल। तभी तो हम इंश्योरेंस को हराम कहते हैं, भाई जुआ है, ये कभी भी लीगल नहीं हो सकता, हराम है, नाजायज है, हम नहीं इसके करीब जा सकते। नबी ने फरमाया जिसने मांगा बगैर इस्तेहकाक के, क़यामत के दिन चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। देने का एक खातून आई, 2 बेटियां, नबी ने उसको सदके की खजूर दी, उस खातून ने 2 हिस्सों में डिवाइड करके अपनी दोनों बेटियों को खिला दी, खुद नहीं खाया। लिया है या दिया है अपनी बेटियों को, दिया। आपने फरमाया जिसको अल्लाह ने बेटियां दी और बेटियां देके अल्लाह ने उसको आजमाया, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूँ। आज बेटियां पैदा होने पे सलवटें आना शुरू, क्यों? इसको तो खिलाना पड़ेगा, ये कमा के खिलाएगी थोड़ी हमें। और भाई औलाद इसलिए पैदा नहीं करो कि हमें खिलाएगी, औलाद इसलिए पैदा करो हम खिलाएंगे इसको, हमें खिलाने का चांस मिलेगा। अल्लाह को खिलाने वाले पसंद है, खाने वाले मार्केट में बहुत पड़े हुए हैं। और अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह हमारे दरमियान आइंदा भी मोहब्बतें पैदा करे। मुल्कों की तकसीम की वजह से रिश्ते ख़त्म नहीं होने चाहिए। रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं, एक रिश्ता इस्लाम का रिश्ता भी है। ये तो मैंने बेसिक 3 रिश्ते बताए हैं। सबसे बड़ा रिश्ता तो खालिक मखलूक का, और खालिक मखलूक के रिश्ते को निभाने के लिए जो जो खालिक को मानते हैं उनसे भी रिलेशन बनाना पड़ेगा। हम सब यहाँ तौहीद परस्त हैं, अल्लाह को, आसमानी किताबों को मानते हैं, सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड समझते हैं। ये भी एक रिश्ता है मेरे भाई, और बड़ा ख़ानदानी सुपीरियर रिश्ता है। तो ये रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुसलमानদেরকে পশ্চিমা
সংস্কৃতি থেকে আল্লাহ তাআলা হেফাজত করে ইসলামের তাহজিব তামাদ্দুনকে বুঝার এবং গ্রহণ করার তৌফিক দান করেন। माफ़ फरमा, जो हक बात हुई है अल्लाह उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। है अल्लाह इस मजमे में जितने मर्द जितनी ख़वातीन बैठी हैं इनके किसी की भी कोई जायज़ मुराद हो अल्लाह उसकी मुराद को पूरा फरमा। ইয়েস, ফাইনালি হুজুরের দোয়ার মাধ্যমেই আমাদের আজকের প্রোগ্রামের শেষ। আই নো ভিডিওটা আরও গুছায় করা যেত, আরও সুন্দরভাবে করা যেত, বাট ওইখানে ভিডিও করার ওইরকম পারমিশন ছিল না, যার কারণে অনেক কাটা ভিডিও হয়েছে। তো কিছু করার নাই, দেখা হচ্ছে সামনের কোনো একটা নতুন ভ্লগে। আর যারা আমাকে চিনেন না, এই ভ্লগে প্রথম দেখতেছেন, তাদেরকে বলতেছি আমি আমার ডেইলি লাইফ ভ্লগ করি। তো দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভ্লগে। আজকের জন্য এতটুকুই, আল্লাহ হাফিজ।